गीता इमेजिन करनी है, बट जो आप कहेंगे सच कहेंगे, सच की सलाह बेस्ट. ओके, वी कैन हैव द क्वेश्चंस फॉर आवर टीम हियर. Everyone so justified with this. No one has any question. सवाल पूछ लीजिए, बहुत बेइज्जती हो जाएगी. Hello, yeah, straight sir. This is Vinamru from First Post. My first question is for Mr. Manish. Sir, yeah, Z5 has been churning out a lot of interesting content of late, which has a social message as well. So, what can we expect from the upcoming slate from Z5 after Banda? Thanks. I think fair point. We, like I said, we focus on customer, and if customer likes good stories, we bring them up. The slate is very big. In fact, on 19th there's a big slate launch event that you will see. I won't take away the thunder from that. But huge number of stories with some great creators and producers are coming your way. And Banda is just the start. So yeah, we are all looking forward to it. But I'm sure that Banda is going to be the star of the slate. So all said and done, we are all excited about the next slate that comes. Yeah. My other question was for Mr. Vinod. Yeah, so my question to you is that as the producer, how did you ensure that the ethos, the essence of Banda comes out in a very thoughtful and creative manner? The film is already made, and we have made sure that Super and me, and we had given this young boy, young man, the entire support what he needed to make this film. And I must tell about Manoj ji has instilled that confidence in him, because he was the guy he was the Banda who told us that he should be directing the film. And let me tell you guys, we have seen the film and we are very happy that whatever the vision and whatever the reason to make this film has been achieved. I think you guys will see the film and be on the same page. Thank you so much. Hi, this is Reema from OTT Play. My question is to Vinod sir. Sir, with the nature of the film, it is bound to create controversies. So, are you ready to take the risk as a producer? You all are here and taken the risk to make the film. So I don't see a point where why should a true thing or story which is to be told should be shy away from controversies. So it's fine. Let them come. पद्मश्री मनोज वाजपेयी की जय हो. बंदा की सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत अच्छा कमाल का ट्रेलर है. मेरी सुपर्ण से मेरा सवाल ये है कि मनोज भाई बहुत कम लोगों के हाथ आते हैं. ऐसा क्या जादू है जो हर बार आप उनको पकड़ लेते हो? फैमिली मैन हुआ और कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट हुए, इस बार फिर पकड़ लिया आपने. फैमिली मैन तो मतलब राजनीति का प्रेम था जिसलिए मैं दौड़ा आया. बट आई थिंक नंबर एक आई थिंक खुशकिस्मती है कि आई गेट टू वर्क एंड वी हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर फॉर द लास्ट 15 years पर्सनली एंड प्रोफेशनली. एंड honestly there is nothing that we can't do. So it comes down to this कि जब भी कोई रोल आता है जो चैलेंजिंग है, उसमें से एक नाम आता है वो मनोज वाजपेयी है. It appeals to him and I get to work with him. It's a pleasure every single time. मेरा दूसरा सवाल मेरे प्यारे दोस्त विनोद भानुशाली से है कि प्रोड्यूसर बनते ही पहला फिल्म किया जनहित में जारी, जो कि बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट था जिसको हाथ लगाने में लोग थोड़ा डरने की कोशिश करेंगे. दूसरी फिल्म आप ये बनाई, तीसरी अटल जी. तो क्या चाहते क्या हो आप सब? किस तरह के सब्जेक्ट का चुनाव आप कर रहे हो और क्या इस तरह की कंट्रोवर्सीज झेलने के लिए तैयार हो आप? आप तो डरा रहे थे कंट्रोवर्सी. हम यहाँ कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी होगी. बट अगेन ये सारी जो भी फिल्में थी, आई थिंक फिल्म इन्फ्लुएंस सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं. और अगर कोई चीज़ समाज की भलाई के लिए या लार्जर ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाने के लिए एंटरटेनिंग वे में बनानी हो तो देन भानुशाली स्टूडियोज विल नॉट शाय अवे. एंड उसके लिए शायद हमें जनित पे भी सपोर्ट मिला था जी का पूरी टीम का. एंड इसमें तो मनोज जी भी हमारे साथ तो फिर क्या. Hi, Apurv. My question is to you. Here on your left, Rashida, you're from People Moon. So, when you
come on board to direct a topic that's very critical and you have to handle it well with sensitivity, did you face any challenges as such? Because here I see the star cast is incredible, all acclaimed actors you have, directed. How was the entire process like for you? आई थिंक इट वॉज अमेजिंग और हमने काफ़ी 6-7 महीने की रिसर्च करी है इस फिल्म के दौरान, और राइटर जो है हमारा दीपक निगरानी, उसके साथ सुपन के साथ हम लोग ने 6 महीने का एक प्रोसेस बिताया था, समय बिताया था, जहाँ पर हमने सिर्फ रिसर्च करी। जब वो पार्ट हो गया फिर हम स्क्रीन प्ले पे आए। तो आई थिंक चैलेंजेस होते हैं वो फिल्म प्रोसेस के दौरान ही होते हैं, और हमने साथ एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम को साथ लेके वो चैलेंजेस वी वेंट ओवर दोज चैलेंजेस। एंड आई थिंक जो शूटिंग के चैलेंजेस हैं, आई थिंक वन मैन मिस्टर मनोज बाजपेयी, जिन्होंने सारे चैलेंजेस हमारे खत्म कर दिए। हम सोच के आते थे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 1 घंटे में पैक करके खत्म, इतना अच्छा टेक दे देते थे। तो बट आई थिंक यस, वेरी ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट टीम एंड आई एम प्रिविलेज टू हैव सुपन फर्स्ट। आई नो सुपन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुपन और मनोज से मेरे को इस प्रोजेक्ट पे लेके आए। एंड देन मिस्टर विनोद भानुशाली, जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, हाँ तेरे पे मैं भरोसा कर रहा हूँ इस फिल्म पे। I think I'm very grateful to all of them, and then of course Manish sir and Sharik sir that for trusting me. So yeah, All the very best. thank you. हाय, संजय मिश्रा फ्रॉम नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे सवाल सबसे पहले मनोज जी से है। कहाँ पे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो लॉयर है इसको आपने बनाया कैसे है, क्योंकि इसके बहुत किस्से होंगे, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बात करता है, लोकेशन की बात भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ तो बैकग्राउंड की स्टोरी जानना चाहता हूँ। आपके मन में वो स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जब हम फिल्म देखें तो आपकी बात को याद रखें। और वो ट्रेलर कैसा लगा संजय? बहुत सुंदर ट्रेलर है और आपका काम भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब आप किसी बहुत ही चर्चित आदमी का, बहुत ही महान आदमी जिसको पूरी दुनिया देखती रही है, उनके पास वीडियोस हैं, उनके फोटोज़ हैं, उनके हर दिनचर्या की कोई ना कोई रिकॉर्ड है, तब उनको करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज इस बात का होता है कि हम एक्सटर्नली उनको सबसे पहले अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, वो एक अलग तरीके का चैलेंज। लेकिन जब आप एक कॉमन मैन जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जिसने काम किया है, या उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, यहाँ पे मेरे जैसे कलाकार के लिए एक फ़ायदे की चीज़ हो कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन जो है, मैं अपना नज़रिया उस कैरेक्टर के साथ डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के साथ उठूँ, बैठूँ, उनको जानूँ और उनकी नकल करने की कोशिश करूँ बाहरी तौर पर। अंदर में वो इंसान कैसा है, क्या इस केस को जब वो उन्होंने लिया तब उनकी मनोस्थिति कैसी थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जब वो केस से डील कर रहे थे तब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और कहाँ पे वो वल्नरेबल हो रहे थे, कहाँ पे वो कमज़ोर भी पड़ रहे थे, और कहाँ पे उनको किस जगह से उनको ताकत मिल रही थी। इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो पूरे तरीके से इंसान लगे, ना कि वो शुरू से जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती है तब तक वो हीरो लगे। मुझे हीरो जैसे चलता है, बैठता होता है, वैसा दिखाने मुझे मेरी बिल्कुल इसमें कोशिश नहीं थी। इसीलिए मैंने सुपर्ण से और विनोद जी से और अपूर्व से बोला था कि भाई मैं ये लोग कह रहे थे मुझे कि आप मिलिए उनसे, पीसी साहब से। मैंने कहा यार मैं बताऊंगा कि मुझे कब मिलना है, पहले मुझे कैरेक्टर बना लेना, क्योंकि उनका जो एसेंस है, जिसके कारण वो पीसी सोलंकी है, उसको मैं अपने नज़रिए में डालना चाहता था, एक कैरेक्टर खड़ा करना चाहता था, मैं उनकी नकल नहीं करना चाहता। फिर मैं उनसे मिला, 2 दिन पहले मिला शूटिंग के, उनसे बातचीत हुई और कुछ एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, उसको मैंने ले लिया, बाकी मैंने नकल नहीं की। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मैं अपने आप को मैं फिल्म में देख रहा था तो बहुत बार मुझे लगा कि पीसी सोलंकी साहब को देख रहा हूँ मैं। तो वो जैसे एक फिल्म की थी मैंने अलीगढ़, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर थे, लेकिन रिसर्च के नाम पे हमारे पास में सिर्फ एक आधे मिनट का एक इंटरव्यू था, उनका वीडियो क्लिपिंग, बाकी हम सबने बनाया। लेकिन जितने लोगों ने सीरस साहब को देखा था या उनसे बातचीत की थी या उनसे दोस्ती थी,
उन सब लोगों का मानना था कि जो कैरेक्टराइजेशन किया था वो बहुत ही उनके करीब था। तो मेरे ख्याल से आदमी जो है वो अपने अंदर की चीज़ों से बनता है। बाहर से अगर सिर्फ देखने जाता तो मैं सिर्फ किसी सोलंकी साहब की बाहर की चीज़ें नकल करता, फिर मैं भटक जाता आप उनको बनाने में। जब एक कहानी लिखी जाती है तो टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है बहुत सी बात। ये जैसे कि अगर बंदा जो टाइटल है इट कुड बी लाइक बंदा बिंदास है या फिर पावर ऑफ अ कॉमन मैन, देयर मे बी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हाट मस्ट हैव कम इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग। और जब टाइटल डिसाइड किया जाता है तो कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग था। और मनोज जी आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है कभी ये लोग जब स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो कोई टाइटल को लेकर या जब लिखा गया था तभी ये टाइटल डिसाइड किया गया? एक हर स्टेज पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं अब उसके लिए और फिर रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन कहीं भी एक चीज़ मैंने देखा और बहुत सारी फिल्में करने के बाद ये फिल्म बंदा में भी कभी भी किसी समय भी हम ये नहीं सोचते कि यार ये टाइटल रख देते हैं, ये फिल्म से का है चाहे फिल्म से उसका वास्ता है चाहे नहीं है, रख देते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। हम लोग हमेशा एक दूसरे पर सवाल करते रहते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि जो सुझाव आते हैं वो आसानी से जल्दी पास होते नहीं हैं। जब बहुत सारे जिम्मेदार और लोग और क्रिएटिव लोग एक साथ जुड़ते हैं, हर सुझाव का स्वागत है होता है, लेकिन उस सुझाव पे कई नज़रिए से उस पर बातचीत की जाती है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे जीवन का बड़ा सीधा साधा रूल है, जब तक मुझसे पूछा नहीं जाता मैं बोलता नहीं। तो मैं मुझसे अगर पूछा गया कि भाई स्क्रिप्ट कैसी है तो पहले ड्राफ्ट के बाद मैंने जो सुझाव थे वो मैंने सुझाव दिए और थैंकफुली लोगों ने माना। आप यकीन नहीं करेंगे, अपूर्व और दीपक किंगरानी जो इसके राइटर हैं, इन लोगों ने 18 ड्राफ्ट किए हैं इसके। 18 ड्राफ्ट कम नहीं होते। 18 ड्राफ्ट मतलब 80 पेज 100 पेज की 125 पेज की स्क्रिप्ट को 18 बार उसको तोड़ के बनाना ये आसान काम नहीं होता है। और प्लस जितने सारे एक्टर्स हैं उन सारे के सारे लोगों के साथ में कितनी बार रीडिंग, और उनको किसी के डेट होते हैं किसी के नहीं होते हैं, कुछ लोग शूटिंग में बिजी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग्स कितनी बार हुई, रिसर्च मटेरियल मेरे साथ साझा किया गया। मुझे कुछ एक चीज़ें गूगल्स पे या इधर उधर से रिसर्च मटेरियल उनके मिले तो, और या जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे लगातार बात करता, तो हर चीज़ जो है हर स्टेप पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब ये सब बनने के बाद फिर आप जब एडिटिंग होती है तो आप जानते हैं कि एडिट पे अपूर्व, पहले तो अपूर्व के जो एडिटर हैं उन्होंने काटा, फिर अपूर्व गया वहाँ पे उनके साथ मिलके उसको एडिट किया, फिर सुपर्ण आया, सुपर्ण ने फिर वापस पूरी की पूरी फिल्म को सबके साथ मिल करके, तो ईच एंड एवरी स्टेप इज very well thought out. You know, it's not something that one person will come and give something and it will be 100% approved. No, it goes through a very difficult process. That's why filmmaking is a very collaborative medium. But yes, the captain of the ship of this medium is the director. उसका विजन है, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से वहाँ पे जाकर के सुझाव लेने बंद भी कर सकता है या सुझाव को भी कर सकता है। Thank you so much for the तुलसी जी आप जा खड़े हो जाइए, इनके लिए ताली बजाइए, उन्होंने रोल किया। क्या कमाल का अभिनय किया है इन्होंने, मतलब दिल खुश हो गया। मैं इनको देखता था शूटिंग पे, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था, बैठे यही सर। और दूसरे मेरे सीनियर, और मैं जिस समय थिएटर में काफ़ी एक्टिव था और वो एनएसडी से कुछ पहले पास आउट हो चुके थे, और जिस आदमी ने मुझे बहुत इनकरेज किया जब मेरा एनएसडी में नहीं एडमिशन होता था, तो एक आदमी था बाहर बैठा हुआ, किताबें पढ़ता रहता था, चाय पीता था, लेकिन मुझे बहुत इनकरेज करता था थिएटर में लगातार अच्छा काम करने के लिए, और इस फिल्म में भी उन्होंने धमाल किया है। वो है विपिन शर्मा जी, प्लीज।
Thank you, Vijay. And our Deepak Nigrani, can you please stand up? Deepak is there, who's written the film. Thank you. Shivam Gupta is the casting director, and all of those people, all the talent, they will come on. They'll come on stage later on. जी सर, आपका सवाल क्या था सर? बताइए। यही सवाल था। बहुत सारे और भी मेरे बहुत सारे अर्जुन वगैरह हैं पीछे, हमारे एग्जीक्यूटिव और अर्जुन हमारे कैमरामैन, देखिए वहाँ पे मैं इन सबको ऊपर बुलाऊंगा बाद में जब बड़े लोग नीचे चले जाएंगे। अगला सवाल। कोई मैसेज है इसमें पब्लिक के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लिए? सोशल। ये फिल्म एक सिंपल चीज डील करती है, आस्था। हम सब की आस्था होती है, हम सब किसी ना किसी को मानते हैं, एंड जब कोई इस आस्था के साथ खेले वो गलत है। और हम कंट्रोवर्सी, एक वर्ड 3-4 बार सवालों में पूछा गया, हम कोई कंट्रोवर्सी को करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट जहाँ तक हमारे लीड कैरेक्टर प्रीति सोलंकी का किरदार है, he uses his own faith, his own belief in Mahadev against someone who has done his faith wrong. So we are all people of faith, we are all people of belief, coming together to talk about one simple thing, that when millions of people put their trust in you, जहाँ आपको भगवान के साथ का दर्जा दें, तो उसको उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि गुरु होना एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है और जिम्मेदारी होती है। और हमारे देश में टचवुड गजब के गुरु रहे हैं। कुछ एक चंद लोग हैं जिनके चक्कर में कभी आस्था को ठेस पहुंची, बट अगेन because of your belief in the judicial system or the system that works, your faith is restored. So it comes down to that, basically. Thank you for all the questions and some eye-opening answers. Thank you.